Students, I hope you all are safe at your homes and you all are healthy also. So students, in the yesterday's video, in the last video, I explained you exercise 14a. Today I am going to explain you exercise 14b. Let's start with the video. Exercise 14b, which the topic which is there, and the topic is other measures of time, which is on page number 119. Let's look at this other measures of time first, and then we'll go to our 14b exercise. Other measures of time. To measure long periods of time, we use days, weeks, months and year. ठीक है, हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स को यूज़ करते हैं. You all know 1 day is equals to 24 hours, 1 hour is 60 minutes, 1 minute is equals to 60 seconds. But some other measures are there. 1 week equals to 7 days, 1 month is equals to 30 days, 1 year is equals to 365 days, 1 year in terms of month it is 12 days, and there are 52 weeks in a year. एक year में 52 weeks होते हैं, right? Now you all have a concept which is leap year. What is leap year, beta? Whenever there are 360 days in a year, that year is called leap year. Because in that year, February, which usually has 28 days in common years, in a leap year, February has 29 days in it. Why so? Earth takes about 365 days and 6 hours to go around the sun. सन के अराउंड मूव करने के लिए अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं. तो बट वी कीप ओनली 365 डेज इन अ कॉमन ईयर. हम ओनली 365 डेज रखते हैं कॉमन ईयर में. तो जो टाइम लेफ्ट आउट है इज़ जनरली एडेड एवरी 4th ईयर. 6 आवर्स में आप 4 मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 24. 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, एंड 24 आवर्स विल मेक 1 डे. So this 1 day gets added to your 365 days, and it will form 360 days, forming a leap year. Is it clear? So why there are 366 days in a leap year. Now let's turn our page and let's start with the exercise. So in exercise 14b, the very first question is fill in. First part is 6 hours is equals to dash minutes. अब in order to do this question, you have to solve the question. आपको क्या करना है, 6 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है. फॉर दिस यू ऑल मस्ट नो दैट 1 आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स. 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. सो 6 आवर्स इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 60, विच इज इक्वल्स टू 6 6 36 10 360 minutes. So yes, what you write, you have to write here 360 minutes. ठीक है, ऐसे ही आप डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करोगे. 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो 5 डेज़ में 5 मल्टीप्लाई बाई 24 एंड यू विल गेट योर राइट आंसर. डू इट ऑन योर ओन. सी पार्ट, 7 वीक इज इक्वल्स टू डैश डे. तो यू ऑल नो दैट 1 वीक में कितने डेज होते हैं. 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज. आपको 7 वीक्स के लिए फाइंड आउट करना है, तो 7 वीक्स विल बी इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7, विच इज इक्वल्स टू 7 7s आर 49 days. So what answer will you get here? 49 days. Now let's do this D part also. D part में आपको 90 days को मंथ में कन्वर्ट करना है. You have to convert these 90 days in months. कैसे कन्वर्ट करोगे? आप जानते हो कि 30 डेज़ का 1 मंथ होता है. 30 डेज़ इज इक्वल्स टू 1 मंथ. और अगर आप चाहो कि आपको फाइंड आउट करना है 1 डे को मंथ में, तो आप 30 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आप जानते हो ग्रेटर वैल्यू पता है, लेसर पता करना है, तो डिवाइड कर देते हैं हम लोग. लेकिन अभी आपको इस क्वेश्चन में 90 डेज़ के लिए फाइंड आउट करना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड 30 विथ 90. 0 से 0 गेट कैंसल्ड, 3 3 9 होता है, तो हाउ मेनी मंथ्स विल यू गेट, 3 months. So what is the answer here? 3. Always remember, whenever you have to convert days into month, divide the number with 30 and you will get your right answer. Okay, now E and F part you have to do on your own, and let's do question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आप लोगों को B पार्ट समझाती हूँ,
विच इज़ 6 hours 53 minutes। मैंने ए पार्ट इसलिए नहीं समझाया क्योंकि जिस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट किया ना आवर्स को मिनट्स में, ऐसे ही आप इन 8 आवर्स को मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो। तो बी पार्ट में आपको बताती हूँ। आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट है, ठीक है। आपको ये ऑलरेडी मिनट्स में गिवन है, आपको सिर्फ 6 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 6 × 60 विल बी 360 मिनट्स। नाउ यू हैव टू ऐड दिस 53 अलॉन्ग विथ 360 मिनट्स। तो आप ऐड करो, यू विल गेट योर आंसर। 0 + 3 is 3, 6 + 5 is 11 का 1 कैरी, 1 + 3 is 4, 413 minutes will be your answer। What is your answer? 413 minutes। फाइन। सिमिलरली सी पार्ट भी आप कर पाओगे। अब हम आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में आपको डेज को कन्वर्ट करना है इनटू मिनट्स। तो स्टूडेंट्स यू ऑल नो डेज को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 डे के अंदर 24 आवर्स। बेटा ये कन्वर्जन्स लर्न होंगे, ओनली देन यू विल एबल टू डू दीज क्वेश्चंस। 1 डे में 24 आवर्स है तो 2 डेज में 2 × 24 विच इज़ इक्वल्स टू 48 आवर्स होगा। अब आपने आवर्स में तो कन्वर्ट किया, लेकिन आपको यहाँ पे मिनट्स में कन्वर्ट करना था। आप जानते हो 1 आवर में 60 मिनट होता है। अब आपको कितने आवर्स को कन्वर्ट करना है? 48 आवर्स को। तो आप क्या करोगे? 48 को 60 से मल्टीप्लाई, 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। पुट अ क्रॉस हियर। 6 × 8 = 48 का 8 कैरी हुआ 4, 6 × 4 = 24 और 4 28। तो 2880 मिनट विल बी योर आंसर। ठीक, 48 आवर्स की प्लेस पे आप 2 डेज लिख सकते हो। दैट मीन्स 2 डेज में कितने आवर्स हुए? 2880 मिनट। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यू हैव टू कन्वर्ट टू सेकेंड्स। आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना ईजी है। कैसे ईजी है? देखो, ए पार्ट है आपका 4 मिनट। आप जानते हो 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। आपको क्या करना है? 4 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो यू विल मल्टीप्लाई 4 with 60, यू विल गेट योर आंसर विच इज़ 6 × 4 = 24, 240 सेकेंड विल बी योर सॉल्यूशन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी और सी पार्ट बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट समझाया। आपको मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज करना है। जो भी आंसर आएगा उसमें 23 ऐड कर दीजिएगा। ठीक, अभी मैं आपको डी पार्ट समझाती हूँ। डी पार्ट है बेटा आपका 3 आवर्स। ठीक है, आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करो। 1 आवर में 60 मिनट्स होता है। सो 3 आवर्स विल बी इक्वल्स टू 3 × 60, 6 × 3 कितना है? 18। तो 180 मिनट हुआ। अब 1 मिनट में आप जानते हो 60 सेकेंड्स होते हैं। आपको कितने मिनट्स को कन्वर्ट करना है? 180 मिनट्स को। सो 180 मिनट्स को कन्वर्ट करो सेकेंड्स में। दिस विल बी 60 × 180। ठीक है। अब 18 × 6 कितना होता है? बताओ ज़रा जल्दी जल्दी। 18 × 6 = 108 and 2 zeros you have to put. So your answer will be 10,800 seconds। तो आपने आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। पहले आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करो, फिर मिनट को सेकेंड में। तो आपका टोटल आवर्स सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? बाकी के दोनों पार्ट्स आप लोग को खुद करने हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4, चेंज इनटू आवर्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 9 डेज। 9 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो यू ऑल नो 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ठीक है। 9 डेज को आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? 24 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके। लेट्स मल्टीप्लाई। 9 × 4 = 36 का 6 कैरी हुआ 3, 9 × 2 = 18 और 3 21, 216 आवर्स। ठीक है, आपने डेज को आवर्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, इजी है। 1 डे में 24 आवर्स है तो 9 डेज में 24 × 9 मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट, वीक्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले वीक्स को डेज में कन्वर्ट करो,
फिर डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 3 वीक्स के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 डेज़ होंगे। आपको पास डेज़ आ गया ना, जब आपको पता चल गया कि 3 वीक्स में 21 डेज़ हैं, तो डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करना इज़ द सेम प्रोसीजर। अब यहाँ पे आता है 6 डेज़ और 12 आवर्स। 12 तो ऑलरेडी आवर्स में है, आपको 6 डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करना है। इसी सेम प्रोसेस से आप 6 डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करो, जो भी आंसर मिलेगा उसमें 12 का एडिशन कर दो। अब मैं आपको डी पार्ट समझाती हूँ, जो कि है 1 मंथ, ठीक है। आपको 1 मंथ को डेज़ में कन्वर्ट करना है। पहले 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, ये मैंने आपको बताया। जब आपने मंथ को डेज़ में कन्वर्ट किया, आप जानते हो 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो आप 30 डेज़ के अंदर आवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। 30 डेज़ में 30 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स होंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 720 आवर्स। 30 डेज़ को मैं 1 मंथ लिख सकती हूँ ना, तो आपने किया ना 1 मंथ को आवर्स में कन्वर्ट, 720 आवर्स विल बी योर सोल्यूशन हियर, ठीक है। एटलीस्ट आप ट्राई करोगे ना तो आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैंने आपको आज सिर्फ 4 ही क्वेश्चन समझाए हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर एवरीबody, ट्राई टू डू these conversions and then we will discuss them in the next video. So have a good luck and have a good day.